नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। डाबग्राम फुलबाड़ी तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष बने देवाशीष प्रामाणिक, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे गौतम गोस्वामी। सिलीगुड़ी शहर में अवैध रूप से चल रहे टोटो को बंद करने की मांग में दार्जिलिंग समतल एंड जलपाईगुड़ी ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महकमा शासक को दिया गया ज्ञापन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सही न्यूनतम वेतन लागू करने के मुद्दे को लेकर आज हिल प्लांटेशन कर्मचारी यूनियन की ओर से दार्जिलिंग बाजार में पोस्टरबाजी की गई। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवाशीष प्रामाणिक को फिर से डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। तृणमूल कांग्रेस डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कल रात उन्हें प्रदान की गई। वहीं गौतम गोस्वामी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। देवाशीष बाबू पिछले 8 वर्षों से डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष है। आज सुबह हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों ने अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक और ब्लॉक उपाध्यक्ष गौतम गोस्वामी का स्वागत किया। আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ এবং জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, 4 বারের বিধায়ক মাননীয় খগেশ্বর রায় মহাশয়, ওনারা চেয়েছিলেন যাতে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাকে ওনারা অনুমোদন করেছিলেন এবং সেই সুপারিশ মেনে আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কালকে রাত্রিবেলায় ঘোষণা করেছেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করেছেন, সহসভাপতি গৌতম গোস্বামী করেছেন। কাজেই সামনে লোকসভা নির্বাচন, এই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের যে 5টা অঞ্চল আছে সাংগঠনিকভাবে ডাবগ্রাম 1, ডাবগ্রাম 2 এর A এবং ডাবগ্রাম 2 এর B, ফুলবাড়ি 1 এবং ফুলবাড়ি 2, এই 5টা অঞ্চলের সমস্ত কর্মীরা, সমস্ত নেতারা, সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি এবং শাখা সংগঠনের যারা ব্লক প্রেসিডেন্ট সবাই আজকে এসছে তারা আমাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু খুব ভালো লাগছে যে তারা খুব খুশি আমরা এবং আগামী রবিবারে আমাদের একটা সুরভি ভবনে সভা আছে, সেই সভায় মহুয়া গোপও থাকবেন, খগেশ্বর রায় থাকবেন। सिलीगुड़ी शहर में अवैध टोटो को बंद करने की मांग में दार्जिलिंग समतल और जलपाईगुड़ी ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सिलीगुड़ी के महकमा शासक को ज्ञापन दिया गया। संगठन की ओर से आज दोपहर करीब 2:30 बजे सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए संगठन के एक नेता ने कहा कि सिलीगुड़ी शहर में जगह जगह बिना नंबर प्लेट वाले अवैध टोटो चल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। संगठन के सदस्यों ने अवैध टोटो की आवाजाही के साथ साथ उन फैक्ट्रियों पर भी रोक लगाने की मांग की है। শোরুম এখনই বন্ধ করতে চাইছি, যে শোরুমগুলো চলছে আর অবৈধ টোটো যেগুলো চলছে সেগুলোকে লাইন আপ যাতে উপায় করা হোক, যাতে তাদের সাথে আমাদের কোনো কলিউশন না হয়। কারণ কি লাইসেন্স প্রাপ্ত যেগুলো টোটো আছে সেগুলো যদি শিলিগুড়িতে চলে তবে এই জঞ্জাটের কোনো সমস্যা হবে না। শিলিগুড়ি পরিষ্কার থাকবে, সুষ্ঠু হবে, জীবন কাটবে, সব কোনো মানুষের কোনো সমস্যা হবে না। আর তাদেরকে যারা লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি কিনেছে তাদেরকে একটা লাইন আপ করা হোক, কালার করা হোক, যাতে তারা একটা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। যেহেতু সেই গাড়িগুলোতে আগের যেগুলো বিক্রি হয়েছে সেগুলো জিএসটি আইজিএসটি সম্পূর্ণ দিয়ে বিক্রি হয়েছে, তার মানে এটা লিগেল। এক তরফ থেকে তারা যদি কেস করতে চায় গভর্নমেন্টের উপরে, তারা কেস করতে পারে যে আমরা আইজিএসটি জিএসটি দিয়ে গাড়ি কিনেছি, তাহলে আমাদের কোনো অধিকার নেই কেন? তাদের অধিকারও আছে, তারা অধিকারী। তারা যেহেতু জিএসটি আইজিএসটি দিয়েছে তবে তারা ওদের একটা অধিকার আছে, তারা কোন জায়গায় চালাবে সেটা প্রশাসন দেখবে। সেটা আমি তাদের কাছে অনুরোধ করবো, সেটা যাতে ওনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে আর যাতে নাম্বার ছাড়া টোটোগুলোকে একটা ওয়ে করা হোক, তারাও চালায় চলে খায় আর আমরা যাতে চলে খেতে পারি। आज हिल प्लांटेशन कर्मचारी संघ ने दार्जिलिंग बाजार में बंद बागानों को खोलने, बागानों को सही ढंग से चलाने और सही न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की मांग को लेकर पोस्टरबाजी की। पिछले साल 2 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले में कहा गया था कि पहाड़ तराई डुआर्स के चाय श्रमिकों के लिए 6 महीने के अंदर वैधानिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। संघ के सदस्य सुमेंद्र तामंग ने बताया कि हम राज्य प्रशासन के शीर्ष पर रहने वाले राज्यपाल को कानूनी न्यूनतम वेतन की मांग के साथ एक प्रतिनियुक्ति देंगे। म सुमेंद्र तामंग हिल प्लांटेशन एम्प्लोइज यूनियन को केन्द्रीय सहसचिव र आज हामी यहाँ हाम्रो युनियनको तर्फबाट हाम्रो
युनियनको तर्फबाट यहाँ पोस्टरिङ गर्न लिफलेटिङ गर्न आएका छौँ। किन पोस्टरिङ किन लिफलेटिङ भन्दा चाहिँ आउँदो 20 तारिक कलकत्तामा राज्यपाल अथवा गभर्नरको घरमा गएर राजभवनमा गएर हामीले त्यहाँनिर एउटा धरना प्रदर्शनी र हाम्रो डेपुटेसन हामीले बुझाउने एउटा सरसल्लाह गरेका छौँ र हो त्यही कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी यहाँ आज पोस्टिङ गर्न आएका हौँ। यो कार्यक्रममा हाम्रो हाम्रो डिमान्ड रहेको छ, के बिन्दु रहेको छ। प्रथमतः यो कार्यक्रम हिल प्लान्टेसन इम्प्लोइज युनियन HPEU अनि तराई डुवर्सको लागि पश्चिम बङ्गाल चिया बगान श्रमिक कर्मचारी युनियन, यो दुईटा युनियनको तत्त्वावधानमा भइरहेको छ र आउँदो 20 तारिक हामी राज्यपालको त्यहाँ गएर एउटा ठुलो शक्ति प्रदर्शनी र एउटा धरना गर्दै डेपुटेसन बुझाउनेछौँ। डेपुटेसनमा 1 नम्बर डिमान्ड रहेको छ कि समस्त चिया बगानहरू, ओपन बगानहरू, समस्त सञ्चालित भएको चिया बगानहरूमा हाइकोर्टको निर्देश अनुसार हाइकोर्टले 1 तारिक अगस्त 2023 को दिन एउटा जजमेन्ट पास गरेको थियो। राधा S चौधरी भन्ने एकजना मेजिस्ट्रेटले हाइकोर्टको तर्फबाट एउटा जजमेन्ट पास गरेका थिए कि आउँदो त्यो टोकरीको दाम छ 400 देखि पाउँदैन भनेपछि हामी कतिको चाहिँ अब एकदमै दलिएर नै काम गरिरहेको रहेछौँ नि त हामी, होइन। अन्त यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो HPEU सङ्गठन हाम्रो गठन भएको छ, त्यसैले अब हामी अगाडि आइरहेको छौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो हुनुपर्छ र भोलि अब हामी कलकत्ता गइरहेको छौँ है हाम्रो डिपुटेसन बुझाउनका लागि। र किन हामीलाई चाहिँ यो सबै अब सरकारले हामीलाई यो लागू हुनुपर्छ भनेको कुरा पनि भएको छैन अहिलेसम्म। अन्त त्यो नहुँदाखेरि त हामी त सोध्नु त जानु पर्यो नि त, होइन। हामीले बुझ्नु पर्यो के कारण चाहिँ भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ लागेर अब हामी चाहिँ यो उसतिर चाहिँ अब यो भोलिको हाम्रो जुन चाहिँ 20 तारिकको प्रस्थान भइरहेको छ कलकत्ता है गभर्नरको उसमा जाने, अन्त यही कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ अब हामी गइरहेको छौँ। कतिवटा प्रकाण्डबाट चाहिँ जानुहुँदैछ? सिलीगुड़ी में एक पड़ोसी ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। आरोपी का नाम बलई शाह उम्र 57 वर्ष है। कल दोपहर को खालपारा चौकी अंतर्गत इलाके में एक 9 वर्षीय बच्ची अकेले अपने घर पर थी। बच्ची की मां उस वक्त अपनी किराने की दुकान पर थी। उसी समय पड़ोसी बलई शाह नामक एक व्यक्ति पड़ोस के घर में घुस जाता है और 9 वर्षीय बच्ची का मुंह दबाकर दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त बच्ची की मां वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद घटना को लेकर हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। डिवाइडर पर चढ़ा टाटा सोमो। सिलीगुड़ी में ईस्टर्न बाईपास पर एक टाटा सोमो डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना आसीगढ़ चौराहे से सटे इलाके में हुई। इसकी सूचना आसीगढ़ चौकी की पुलिस को मिली तो भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड और आसीगढ़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने टाटा सोमो को क्रेन के सहारे उठाकर थाने ले आई। सिलीगुड़ी में नाबालिगा का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम कौशिक दर्जी उर्फ क्रिस है, जो मूल रूप से फांसीदेवा का निवासी है, लेकिन वह 4 नंबर वार्ड नौतुनपारा में अपने मामा के यहाँ रह रहा था। इसी दौरान उसे 14 वर्षीय नाबालिगा से प्यार हो जाता है। गत 6 तारीख को नाबालिगा के परिवार वाले खालपारा चौकी में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस को मामले की जाँच के दौरान पता चलता है कि नाबालिगा को उसका प्रेमी क्रिस भगा ले गया है। इसके बाद पुलिस कौशिक दर्जी उर्फ क्रिस को नाबालिगा के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश करती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT,
कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध हैं। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
कुचबिहार के दिनहाटा स्वास्थ्य मेला कमेटी की ओर से वर्क फॉर हेल्थ नारे के साथ दिनहाटा में एक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में उत्तर बंगाल विकास विभाग के मंत्री उदयन गुहा, उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय, दिनहाटा नगर पालिका के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत कमल शाह और अन्य लोग उपस्थित थे। आज इस पदयात्रा में बोलते हुए मंत्री उदयन गुहा ने कहा, यह पदयात्रा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक करने के लिए है। स्वास्थ्य मेला 20 और 21 जनवरी को दिनहाटा सनहित मैदान में आयोजित किया जाएगा। खूब खुशी प्रत्येक बছর দিনহাটাতে স্বাস্থ্য মেলা হচ্ছে এবার আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক প্রত্যেক বছরই এই স্বাস্থ্য মেলায় অংশগ্রহণ করছে আর আমরা ডাক পেয়েছি স্বাস্থ্য মেলায় হাঁটুন এই প্রোগ্রামে এবং সেই প্রোগ্রামে সাড়া দিয়ে আমাদের কলেজের এনএসএসের ইউনিট 1, 2, 3 তিনটা ইউনিটের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা পার্টিসিপেট করেছে এবং আমরা চাই সবাই এই প্রোগ্রামে হাঁটুক এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে আসুক। স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুক, সবাইকে স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে, এটা খুব ভালো দিক, সমাজের দিকে ভালো দিক। সুস্বাস্থ্য সুস্থ মন করে ঠিক সুস্থ সমাজ করে, তাই স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন খুব ভালো পরিকল্পনা। পদযাত্রা নিয়ে তো আর আলাদা করে কিছু বলা যায় না, কারণ এই পুরো স্বাস্থ্য মেলাটা এবং প্রয়াত কমল গুহর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে যে 7 দিন ব্যাপী উৎসব, সেটা তো দিনহাটাবাসীর কাছে একটা গর্ব এবং অহংকারের বিষয়। আমরা অপেক্ষা করে থাকি সারা বছর আমরা এই অনুষ্ঠানটা এই জন্য অপেক্ষা করি, এই দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করি। আমরা সেই আমাদের অপেক্ষা শেষ করে 2024-এর যে উৎসব, সেই উৎসবে পৌঁছেছি। গতকাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের সকালবেলা যেটা হলো সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন, প্রত্যেকবার হয়, এবারও হলো। আজকে সন্ধ্যাবেলার থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মূল মঞ্চে। 20-21 স্বাস্থ্যমেলা, 20 তারিখের স্বাস্থ্যমেলা উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অর্থাৎ একটা জমজমাট অনুষ্ঠান এই কয়েকদিন ধরে দিনহাটাবাসীকে আমরা উপহার দেব এবং দিনহাটাবাসীও এটাকে উপভোগ করবেন প্রতি বছরের মতন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह के तहत समग्र शिक्षा अभियान की ओर से सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल में आज 8वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान के विषय में जानकारी दी गई। इस शिविर में स्कूल छात्रों को मुख्य रूप से दूध में मिलावट का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में खाना में उपयोग होने वाले मसालों में रंगों के मिश्रण को पहचानने की विधि सिखाई गई। शिविर में शिक्षक संजय दास, पलाश चक्रवर्ती, राजा वैष्णव उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान शुरू किया गया। यह अभियान आज अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर बाजार इलाके में चलाया गया। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी जा रही है। उस कार्यक्रम में अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बरला, फालाकाटा विधायक दीपक बर्मन और अन्य उपस्थित रहे। आज अलीपुरद्वार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बरला ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य मोदी सरकार की सार्वजनिक परियोजनाओं का लाभ सभी आम लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरा देश भर আমরা করতে যাচ্ছি আর আমরা গ্রামে গ্রামে মোদি যে বিকশিত ভারত কি জিনিস আর আমরা চাচ্ছি যে মোদি এতগুলা স্কিম তৈরি করেছে 100 থেকে উপরে, কিন্তু এই রাজ্য সরকার কর্পোরেশন করছে বলে আমরা অনেকটা করতে পারছি না। তাও যতটুকু আমরা পারছি এই ভ্যান দিয়ে আমরা সব জায়গায় গ্রামে গ্রামে, হ্যাঁ না, বস্তি বস্তিতে, বাজারে বাজারেতে আমরা এটা নিয়ে আমরা বিকশিত ভারতের জন্যে আমরা মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করছি যে এত আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার জন্যে আমাদেরকে কি কি প্রয়োজন, ওইটা সব কিছু এইখানে আছে। মোদিজি কি করতে চাচ্ছেন সাধারণ গরিব মানুষ জন্যে আর সবার কিষানদের যারা এইখান থেকে রোজগার জন্যে আমরা কি করতে আগামী দিন কিভাবে ব্যাংক থেকে লোন পাবো, যে পিএম সম্মান নিধি আছে, পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা আছে, উজ্জ্বলা গ্যাস আছে,
কৃষি লোন আছে, তারপরে মুদ্রা লোন আছে, এডুকেশন লোন আছে, আমরা কিভাবে মানুষ কাছে পৌঁছাতে যাব। अलीपुरद्वार में एसएसबी की पहल पर डीआईजी शिव दलाय ने सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम शुरुआत की। इस अवसर पर एसएसबी नंबर 17 बटालियन के कमांडर संजय त्रिपाठी मौजूद थे। इसकी शुरुआत सुबह फालाकाटा के एसएसबी नंबर 17 बैरक से की गई। यह अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में 100 एसएसबी जवान भाग ले रहे हैं। भारत भूटान से लगी सीमा की रक्षा एसएसबी कर रही है। एसएसबी के डीआईजी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम करना है। नमस्कार, ये हम अभी 17 बटालियन के प्रांगण में खड़े हैं, तो जो कि जलपाईगुड़ी सेक्टर के अंडर आता है, और जलपाईगुड़ी सेक्टर में 4 बटालियन 17 बटालियन 53, 34 एंड 46। तो भूटान बॉर्डर पे ये डिप्लॉयड हैं, और आपको पता ही है कि भूटान हमारा फ्रेंडली कंट्री है और कहीं से भी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो जब हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात रहते हैं तो अक्सर उनका पब्लिक से इंटरेक्शन होता है। तो अब अभी आज जो हम कोर्स चला रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल पे कोर्स है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि ये कोर्स इसलिए चला रहे हैं कि हमारे लड़कों को, हमारे जवानों को, अफसरों को सिचुएशन बड़े सॉफ्ट तरीके से डील करने के में इनको परफेक्टनेस मिलेगी, ताकि जो भी लोगों से इंटरेक्शन होता है अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ और अपनी ड्यूटी में फर्मनेस दिखाते हुए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। ये वर्कशॉप जो है 1 हफ्ते की वर्कशॉप है। आज से मतलब 6 वर्किंग डे हैं। आई थिंक 54 पीरियड्स हैं टोटल। एक पीरियड 40 मिनट्स का है, तो 1 हफ्ते के लिए है। इसमें हमारे बेसिकली फ्रंटियर, पूरे फ्रंटियर की जितने भी यूनिट्स हैं, फ्रंटियर जो है वो आईजी कमांड करते हैं और उनके अंडर 3 सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर के अंदर जो है 4। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से कुछ बिहार के ताकागाछ इलाके में एक रिहर्सल रूम बनाया गया है। रिहर्सल रूम के एक कार्यालय भवन का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारी अभिजीत चटर्जी ने की। इस अवसर पर छायानीर के बाल कलाकारों ने गीत और नाट्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले अभिजीत चटर्जी ने छायानीर के कार्यक्रमों की सराहना की। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় আমরা কোচবিহার ছায়ানীর টাকাগাছ অঞ্চলে একটি মহড়া কক্ষ তৈরি করেছি এবং এই মহড়া কক্ষের যে অফিস ঘরটা সেটা আজ উদ্বোধন করলেন ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জি। আমরা নিয়মিত এই টাকাগাছ অঞ্চলে এই মহড়া কক্ষে আমাদের রিহার্সাল নিয়মিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। कुचबिहार के फरक्कर हाट बाजार में एक ही रात 8 दुकानों में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यवसायी ने बताया कि वे रात में दुकान बंद करके चले गए थे। इस बीच चोरी की घटना से इलाके के क्षेत्रवासी और व्यवसायी परेशान हैं। सूचना मिलने के बाद शीतलकुंची थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में व्यवसायियों ने शीतलकुंची थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बाजार में पहले भी चोरी हो चुकी है। उन्होंने मांग की है कि बाजार में रात्रिकालीन निगरानी की व्यवस्था की जाए। কালকে আমরা রাত্রিবেলা দোকান বন্ধ করে গেছি। সকালবেলা আমি ঘুমেছি, আমার মোবাইলে ফোন আসলো যে তোর দোকান চুরি গেছে। আমি সকাল 5টার দিকে এসে দেখি আমার দোকান চুরি গেছে, আর পয়সা গেছে, আর দামি দামি যেগুলো মাল ছিল কসমেটিকের ওগুলো সব চুরি গেছে। এর আগেও একবার পুনরাবৃত্তি চুরি হয়েছিল এই 2 সপ্তাহ আগে। আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি না যে আমি বলতে পারলাম না। এবারে পুনরায় আবারও চুরি হলো আমাদের দোকান। মানে তোমার দোকান সহ মোট কটা দোকান চুরি? মোট 8টা দোকান চুরি গেছে। এই 8টা দোকানে আনুমানিক কত টাকা চুরি হতে পারে? আনুমানিক বলতে গেলে 8-10 লাখ টাকা হবে 8টা দোকান হয়তো। আপনার কত টাকা চুরি গেছে? আমার হবে 50-60 হাজার টাকা হবে। কসমেটিকের মাল ছিল তো। ঘন ঘন চুরি হচ্ছে, এই বিষয়টা কি বলবেন? আমরা আর কি বলি, প্রশাসন আমরা লিখিত অভিযোগ দিব থানায়,
প্রশাসন দেখি প্রশাসন কী করে। প্রশাসন আমাদের মানে দেখার জন্য অনুরোধ রইল যে প্রশাসন সুযোগটা দেখুক, বাজারটা এরকম বারবার চুরি হইতেছে। গত রাতে একই রাতে এই 8টি দোকান চুরি, এবার কী মনে হয় আপনার? আমার তো মনে হয় বাজারে নেশাখোর লোক অনেক থাকে, আর কাউকে আমরা সন্দেহ করেও বলতে পারি না যে কে চুরি করে। মনে হয় লোকালেরই কেউ হবে, নাহলে বেছে বেছে আমাদের যাদের যাদের দোকান চলিত দোকান তাদের দোকান চুরি হইতেছে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।